Hello students, myself Ajay Singh Ahlawat, and in this lecture we are going to cover the ecology portion of your Anubhav test number 5. Now let's start with the first question itself. The first question here says, which of the following is not necessarily the potential environmental benefit of biodegradable plastics as compared to traditional plastics? नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप थोड़ा सा सोचोगे इसको तो इजीली इसको ठीक कर सकते हो. देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की, यानी वो जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे बाय नेचुरल प्रोसेसेस. जो हमारा नॉर्मल प्लास्टिक होता है, जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक होता है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है. बट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स दे कैन इजीली गेट डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस इटसेल्फ. तो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू दैट which can be the appropriate answer here. First one is reduced accumulation of plastic waste in landfills and natural environment. Obviously, when the plastic is getting degraded or it is getting degraded, that means there will be reduced accumulation. So this is a correct statement. This is a potential benefit of the potential environment benefit of the biodegradable plastic. तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. Second, better recyclability than traditional plastics. See, ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स की रिसाइकेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं नेचर के अंदर डिग्रेड होने में, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते. दैट्स व्हाई वी नीड टू रिसाइकल दैट. बट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के अंदर क्या है? दे कैन इजिली डिग्रेड, दे कैन इजिली बी डिस्पोज्ड ऑफ. दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड टू रिसाइकल दोज plastics. So this can be your answer. This is not a potential environmental benefit. Why? Because by the nature of the biodegradable plastics, it is getting easily disposed of in the environment by the natural processes itself. It is not getting accumulated in the environment. So we do not need to recycle it. थर्ड वन इज लोअर माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशंस एंड वाटरवेज. ऑब्वियसली क्योंकि प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उसकी लाइफ स्पेन कम है, तो ये क्या होगा? there will be lower micro plastic pollution. So this is going to be a potential benefit. So this cannot be our answer. Last one is faster decomposition under natural conditions leading to less persistent pollution. Yes, this is correct. कि environmental benefit इसका है, that's why this cannot be the answer. So option B is the only option here which is not necessarily a potential benefit of the biodegradable plastic. So ये एक्चुअली उल्टी दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बेनिफिट इसका नहीं होगा. तो इट कैन नॉट इट द रिसाइकेबिलिटी जो है वो ट्रेडिशनल प्लास्टिक से उसका पोटेंशियल कम है. दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. ग्लोबल डिमिंग. व्हाट इज ग्लोबल डिमिंग? ग्लोबल डिमिंग क्या होता है? कि जो भी आपकी सोलर रेज आ रही है, उन सोलर रेज में देयर इज अ कांस्टेंट रिडक्शन, और देयर इज अ रिडक्शन इन द सोलर रेडिएशंस दैट आर कमिंग टू द अर्थ सरफेस. दैट इज नोन एज ग्लोबल डिमिंग. So if you want to know the definition is decline in the amount of sunlight activity reaching the earth's surface, that is known as solar dimming. So solar dimming, the gradual reduction of sunlight reaching the earth, is primarily caused by which of the following? Increased volcanic activity. Volcanic activity increase होने से क्या होगा? There will be increase of gases plus particulate matter in the atmosphere, जिसकी वजह से क्या होगा? The sunlight will be reflected back. So it is going to help in global dimming. This can be the answer. Second, air pollution. Obviously air pollution has particulate matter and it is going to reflect the sunlight back to the atmosphere. So it is definitely going to lead to global dimming. नेक्स्ट इज चेंजेस इन सोलर साइकिल. ये हमारा हम डायरेक्टली इसको सोलर डिमिंग के साथ रिलेट नहीं करते. सोलर डिमिंग को एक्चुअली हम रिलेट करते हैं पोल्यूशन के साथ और पार्टिकुलेट मैटर के साथ. सो दिस कैन नॉट बी आंसर. लास्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस. ये ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट डालेगा, ना कि ग्लोबल डिमिंग के ऊपर. सो यू हैव टू चूज बिटवीन ऑप्शन ए एंड बी. नाउ जो वोल्केनिक एक्टिविटी है दैट इज नॉट दैट मच कांस्टेंट ऑन द अर्थ, while air pollution in the present context is very constant and it is actually increasing. That's why the answer here becomes air pollution. Why? Air pollution has a more prominent effect on the global dimming phenomena. That's why the answer is option B.
Next is question number 15. Question number 15 says, consider the following statement. Warming sea waters worsened by the El Nino triggered the recent global mass coral bleaching event. You know what is El Nino? El Nino is warming of the ocean waters on किस तरफ? ईस्ट पैसिफिक ओशन में. ईस्ट पैसिफिक ओशन में जो वार्मिंग ऑफ ओशन वाटर उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. उसे हम क्या कहते हैं? उसको किस वजह से होता है? एल नीनो की वजह से होता है. तो एल नीनो क्या कर रहा है? ओशन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? कोरल ब्लीचिंग. तो ये कोरल ब्लीचिंग होती क्या है? देखो, इफ यू टॉक अबाउट द कोरल्स, तो व्हाट आर कोरल? कोरल एक्चुअली आपके फाइलम निडेरिया के अंदर आते हैं. And corals basically is a symbiotic relationship between the polyp form of the phylum Cnidaria and the zooxanthellae of the alga. तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये होते हैं zooxanthellaes. So this is a symbiotic relationship. Symbiotic का मतलब दोनों को बेनिफिट होता है. एल्गा को मौका मिल जाता है कहीं पे स्टेबल स्टेटिक होने का, और जो zooxanthellaes जो एल्गी हैं आपके, दे एक्चुअली प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पॉलिप फॉर्म ऑफ दिस फाइलम निडेरिया. तो ये उसको कोरल को वहां क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं. तो ये एक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नाउ जब भी ऐसी कंडीशंस आएंगी, जैसे चेंज इन ओशन टेम्परेचर, या देयर इज पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज हो गए, सैलिनिटी चेंजेस हो गया, या ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट हो गया, या देयर इज एक्सट्रीमली लो टाइड्स हो गए, जब ऐसी कंडीशंस होंगी तो क्या होगा? ये जो zooxanthellaes हैं, जो ये ग्रीन वाले पोर्शन है आपके, ये एक्चुअली कोरल्स को छोड़ना शुरू कर देंगे. When they start leaving it, this phenomena is known as coral bleaching. आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लीचिंग. ब्लीचिंग में क्या होता है? जो आपके कलर्स वगैरह उनको हटा देते हैं. जो भी आपका अगर मान लो कोई दाग धब्बा लग गया है कपड़ों पे, तो ब्लीचिंग के थ्रू हम उसको रिमूव कर देते हैं. सो ब्लीचिंग में होगा क्या कि जो इनका कलर है कोरल्स का, वो लूज हो जाएगा. और कलर कौन प्रोवाइड करता है? कलर इसको प्रोवाइड करते हैं zooxanthellaes. जो एल्गी होते हैं इसके अंदर, वो कोरल्स को कलर देते हैं. सो व्हेन दिस एल्गी पार्ट और zooxanthellae पार्ट ऑफ द कोरल स्टार्ट लीविंग इट, दैट फिनोमेना नोन एज कोरल ब्लीचिंग. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज, पहला स्टेटमेंट क्या है? ओके, या वार्मिंग सी वाटर वर्जन बाय एल नीनो ट्रिगर्ड द रीसेंट कोरल ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट. तो ये करंट अफेयर से रिलेट करता है. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. सेकंड, at elevated temperatures, zooxanthellae algae produce toxins harmful for corals, leading to rare mass bleaching event. This statement is wrong. Why? Coral bleaching में क्या होगा? The zooxanthellaes are going to leave the corals. That phenomenon is known as coral bleaching. It is not related with the production of toxins. So ये statement आपका wrong हो जाएगा. Answer here becomes option C. Statement 1 is correct and statement 2 is not correct. Now next question चलते हैं. Question number 16. It says, with reference to the High Seas Treaty. ये क्या है? High Seas Treaty. So इसके ऊपर क्वेश्चन है, what is High Seas Treaty? It is the agreement on the biodiversity beyond national jurisdiction. ये आपका UN क्लॉज के अंदर आता है. जो आपके यूनाइटेड नेशन जो रूल्स हैं हायर सी लेवल्स के, जो कन्वेंशन है सी के लिए विद रिस्पेक्ट टू सी, जो यूएन कन्वेंशन है, इट एक्चुअली हैज 3 एग्रीमेंट्स. एक है आपका 1994 एग्रीमेंट, जिसके अंदर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बनाई गई थी, जो कि गवर्न करती है जो हायर सीज हैं, यानी जो जुरिस्डिक्शन से बाहर का जो रीजन है, वहां के मटेरियल्स, वहां के रिसोर्सेज वगैरह को. सेकेंड जो ट्रीटी आई थी वो आई थी 1995 में. इट इज फिश स्टॉक एग्रीमेंट. वो फिश से रिलेटेड था. Now third agreement for the implementation of UN clauses, this agreement on biodiversity beyond national jurisdiction. So the agreement on BBNJ, this is the third agreement under UN clause.
UN clause was signed in 1994. Everyone knows about this thing, ये बेसिक था इसका. Now पहले थोड़ा सा एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी के बीच बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन के ऊपर. Now this the basic purpose is कि जो हमारे ओशन के जो प्रेजेंट रिसोर्सेज है वो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनको बचा के रखना है. We have to save the marine environment. We have to ensure a responsible use of them. We have to maintain the integrity of underseas ecosystem and conservation of marine biological diversity inherent value. So basically जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि जो ओशंस, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, जो ओशंस के जो पार्ट्स हैं जो जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, उनकी मरीन लाइफ को, उनकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना. उसके लिए देयर आर बेसिकली 4 एरियाज इन विच दिस एग्रीमेंट अप्लाइज ऑन. The first one is marine genetic resource and their digital sequence information, including the fair and equitable sharing of benefits. Second, area-based management tools, including marine protected areas, then environment impact assessments, and lastly, capacity building and transfer of marine technologies. These are the 4 themes on which this agreement is based. So basically, agreement का purpose आपको समझ आ गया, उसकी basic theme समझ आ गई. Now next चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन says it aims to establish clear boundaries for national jurisdiction over marine resources. Do you think, देखो इसको अगर आपको नहीं भी समझ आता है, अगर if you don't know about this treaty also, you just try to use your common sense. क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता? ये ट्रीटी इसके लिए हायर सीज के लिए. हायर सीज का मतलब क्या है? जो कि किसी भी नेशन की बाउंड्रीज से बाहर के जो ओशनिक एरियाज हैं उनके लिए ही है, तो वो किसी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते. सो डू यू थिंक दिस ट्रीटी इज गोइंग टू एस्टेब्लिश अ क्लियर बाउंड्रीज फॉर क्लियर नेशनल जुरिस्डिक्शन के लिए बाउंड्रीज वहां पे क्रिएट करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अगर मान लो इंडियन ओशन की हम बात करें, तो इंडियन ओशन के अंदर मान लो इंडिया को कोई टेरिटरी दे दी गई, तो कहीं ना कहीं देयर विल बी डिस्प्यूट फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो कि ये तो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर एरिया आता है, इसको आप किसी की जुरिस्डिक्शन में कैसे दे सकते हो? सो दैट इज हाईली अनलाइकली कि जो भी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर एरिया आता है, जो भी हाई सीज के अंदर एरिया आता है, वो किसी कंट्री की जुरिस्डिक्शन में दिया जाए. So that is possible. That is a very very bleak possibility, or that is actually against the ethos of the international relations. क्योंकि बाकी कंट्रीज बोलेंगे कि हमारे ऊपर भी इसका इतना ही हक है जितना इस कंट्री का है. So basically this statement becomes wrong here. Second, it ensures that all benefits from the marine genetic resources are controlled by the intellectual property rights. देखो, this is a very convincing statement. बहुत ही convincing statement ये लग रही है, पर जस्ट सी अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंटरनेशनल वाटर्स में आता है. सेकेंडली ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जब भी आप कोई चीज बात करते हो तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की. अगर आप आईपीआर को डाल दोगे किसी चीज के अंदर, तो यहां पे इक्विटेबल शेयरिंग रुक जाएगी, बिकॉज जिसके पास अभी ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो वहां पे जाके आईपीआर वहां पे आईपीआर ले लेगा, और उसकी वजह से जो इक्विटेबल शेयरिंग है वो हैम्पर होगी. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स रॉन्ग, because it goes against the ethos of the principle of equitable sharing of resources. So ये statement भी wrong हो जाएगा. And even इसी principle के basis पे आप first statement को भी negate कर सकते हो. Third is it provides for the establishment of marine protected areas in the international waters. Yes, very logical. पहली बात तो ये दिया ही हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इंक्लूडिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का ही बात दी हुई है. उसके साथ साथ यू कैन सी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स भी वहां दिया हुआ है. तो पहले ऑलरेडी उसकी थीम्स के अंदर ये मेंशन्ड है. बट इफ यू डोंट ऑल्सो नॉट नोइंग अबाउट द थीम, देन ऑल्सो लॉजिकली आप इसको कर सकते हो. क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को ठीक करने की. देन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्यों होने चाहिए? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए. ठीक है. सो हियर द स्टेटमेंट third is correct, hence the answer becomes option A, only one. Next is question number 17. It says, in the context of lead poisoning, consider the following statement. There is no known safe levels of lead exposure. Now tell me, is the statement right or wrong? Right है या wrong है? See, WHO says, yeah, whatever studies have been done, it says there has been no safe levels for lead poisoning. The reason is that
it has been observed that even the minute amount of lead in the blood streams can actually affect human body in a very acute manner. यानी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है even a very small or minute presence of lead in our body. So WHO says that there is no safe levels for lead exposure. The first statement is correct here. Second, more than 80% of the total global consumption of lead is for production of batteries. See, lead आपका multiple जगह पे use होता है. Lead is used in batteries, lead is used in automobiles, lead is used in paints and varnishes, lead is also used in your radiation proof जो आप materials बनाओगे उसके अंदर भी lead use होगा because it is a heavy मटेरियल. तो रेडिएशन प्रूफिंग के लिए लेड यूज होगा. तो लेड हैज मल्टीपल यूजेस. इवन रोमन टाइम्स में लेड की पाइप्स भी हुआ करती थी जो वाटर सप्लाई के लिए यूज होती थी. सो लेड हैज मल्टीपल यूजेस. सो इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बैटरीज के अंदर लेड more than 80% of the lead is consumed in the batteries because batteries is an important part of our energy ecosystem. Next, India has recently phased out the use of lead in plastics or paints. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पेंट्स में अभी तक ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया है कि हमने पेंट इंडस्ट्री को या जो जो भी इंडस्ट्री आएगी केमिकल्स इंडस्ट्री को हमने इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया हो कि हमने उस वहां से कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट वहां से हटा दिया हो. सो दैट हैज नॉट बीन डन येट. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर. वी हैव एक्चुअली फेज्ड आउट द लेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इसलिए आपने देखा होगा कि अनलेडेड पेट्रोल लिखा होता है पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर. जो भी आपके पेट्रोल पंप्स है वहां पे आपको दिखेगा अनलेडेड पेट्रोल लिखा हुआ. सो इट हैज बीन अ स्टेप दैट वाज टेकन एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग स्टेप. ये बहुत पहले ले लिया गया था स्टेप. सो द थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. सो हियर द थर्ड वन इज रॉन्ग. सो द आंसर ऑटोमेटिकली बिकम्स ऑप्शन ए. So even if you are aware about the third statement, then also you can identify what is going to be the answer to this question. Because paints के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं है. There has been no current affairs with respect to that. And paints एक important source है lead poisoning और lead pollution का भी. So that's why this statement has to be wrong here. Now next is कि lead कैसे आपकी body को affect करेगा. If you go for lead, it is going to affect your brain. It is going to lead to loss of body movement, coma, stupor, hyperirritability and death. It can also affect your hormones. Vitamin D को ये actually affect करता है basically. और cell growth को ये hamper करेगा. Then stomach में it can cause abdominal pain and cramping. Then it also affects your reproductive system. It actually affects the sperm count and it damages it lowers the sperm counts and it damages them also. Then with respect to heart, it can lead to high blood pressure. For the blood, it leads to fatigue, rapid heartbeat, dizziness and shortness of breath. Then kidneys, it can lead to kidney failure, fever, nausea, vomiting. ये तो सब चीजें होंगी. Then it accumulates in bones and it leads to slow growth in the children. So this is the effect of lead on the body. So even the minute amount of lead in our blood streams can have long lasting effects on our health. Now next is question number 18. It says the question is about e-soil. So consider the following statement with respect to the potential application of e-soil. अब ये e-soil है क्या? What is this e-soil? Basically, e-soil can be defined as it is a low power bioelectronic growth substrate, you can remember this definition, that can electrically stimulate the root system and growth environment of the plant. So what is e-soil? E-soil actually एक European university ने they have done a research कि if we stimulate the roots of the plant with a very minor electric current, it can actually increase its productivity, it can increase its growth. तो उसके growth और productivity को वो positively affect करता है. That's why this name is given as e-soil. Why? Because a mild, very mild amount of electric current is supplied to this substrate or this soil. The application has been basically upon the hydroponics. जो आपकी लिक्विड के थ्रू जो आपकी
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है उसमें इसका एप्लीकेशन, उसमें इसकी टेस्टिंग अभी की गई है। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स सी द क्वेश्चन, रिड्यूसिंग द नीड फॉर पेस्टिसाइड्स इन द सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो दो चीजों में इसको आप नेगेट कर सकते हो। पहली चीज तो पेस्टिसाइड्स अभी तक कोई टेस्टिंग इसकी हुई नहीं है। सेकेंडली सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर, द बेसिक रिसर्च ऑन ई सॉइल हैज बीन ओनली ऑन द हाइड्रोपोनिक्स। ये सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर पे इसका कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं है, तो वी कैन नॉट से कि इट इज गोइंग टू रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर। सेकेंडली, जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका यूज किस में होता है? पेस्ट्स को मारने के लिए होता है, पेस्ट कंट्रोल में होता है। एंड व्हाट ई सॉइल इज डूइंग, इट इज एक्चुअली स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये ई सॉइल का पेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई पेस्टिसाइड का कोई वी कैन नॉट से कि उसकी नीड कम होगी या ज्यादा होगी, उसका कोई डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है सॉइल के साथ। सेकंड, प्रमोटिंग अर्बन एग्रीकल्चर एंड वर्टिकल फार्मिंग। ऑब्वियसली जब प्लांट ग्रोथ होगा और जल्दी ग्रोथ हो पाएगा तो इट इज गोइंग टू प्रमोट द अर्बन एग्रीकल्चर एंड वर्टिकल फार्मिंग। Increasing crop yield in hydroponic system, yes, it is going to increase. Why? Because there has been a positive correlation between the mild electric currents that is provided to the roots and the growth observed in the plant. So the third statement is also wrong, also correct. So the answer here becomes option B, only 2. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। It says which of the following activities now falls outside the purview of the Biological Diversity Act 2023 after the recent amendment. Now देखो दो चीजें अब हम इसमें मान के चलेंगे। एक हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर आपको प्रोविजंस का पता है तो यू कैन डायरेक्टली आंसर इट कि इसका आंसर क्या होगा। सेकेंडली, अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको एंड इफ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो? तो उस केस में यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि किस अप्रोच के साथ आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट चलती है, व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड प्रेजेंट अप्रोच हैज बीन ऑफ द गवर्नमेंट। वो एक अप्रोच आपको दिमाग में लेके चलनी होगी। सेकेंडली, व्हाट कंडीशंस आर देयर कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, तब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो एंड टू अ सर्टेन पॉइंट उसको एक्यूरेटली आंसर कर सकते हो। नाउ फर्स्ट इज कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ एंडेमिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। क्या ये इसके परव्यू से आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा? कि एंडेमिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हम परव्यू में लेना पसंद करेंगे या उसको एग्जिट करेंगे? ऑब्वियसली हम उसको अपने परव्यू में लेके आएंगे, बिकॉज एंडेमिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कौन से होंगे? जो सिर्फ इंडिया में मिलते हों। सो ऑब्वियसली ऐसे रिसोर्सेज को हम जरूर लेके आएंगे बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। सो दिस वन बिकम्स रॉन्ग। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर कोई भी कंपनी या कोई भी रिसर्च स्कॉलर इंडियन बायोलॉजिकल रिसर्चेज के ऊपर कुछ रिसर्च करता है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ रिसर्च करता है, तो ऑब्वियसली वी शुड हैव द राइट टू नो दैट रिसर्च। हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। सो ये भी उसके परव्यू में आएगा। दैट्स व्हाई दिस आल्सो बिकम्स रॉन्ग। थर्ड, मैटर्स रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन द इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसी एक्ट से गवर्न होगा। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी इनसाइड द परव्यू ऑफ द बीडीए, यानी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट, कल्टीवेशन ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। नाउ व्हाट इज दिस कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज? थोड़ा सा सोचो। और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहा है, यानी जो आयुष वगैरह है, आयुर्वेदा वगैरह जो है उसकी ये बात कर रहा है। तो अगर आप आयुर्वेदा को बीडीए के अंदर लेके आओगे तो क्या होगा कि वो उन सोर्सेज को ऊपर पढ़ नहीं पाएंगे, उन जड़ी बूटियों को यूज नहीं कर पाएंगे। That's why in the recent amendment, the cultivation of codified traditional knowledge of Indian medicine practitioners has been put out of the ambit of this Biological Diversity Act। यानी कहने का मतलब यह है, कोई भी आयुष प्रैक्टिशनर डॉक्टर वगैरह है तो वो अपने फार्म यार्ड में इन जड़ी बूटियों का कल्टीवेशन कर सकता है फॉर द मेडिकल पर्पस, तो वो बीडीए की नॉर्म्स के अंदर नहीं आएगा। सो दैट इज द लॉजिकल आंसर है। आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। सो इफ यू डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन, तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो यू माइट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। नाउ नेक्स्ट इज with reference to the persistent organic pollutants in India, consider the following statement. India has completely banned the use of diphenyl trichloroethane. So examiner ने DDT यहाँ पे दे दिया तो it becomes easy for us, वरना you should know
व्हाट इज द एक्चुअल फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, वो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है यूपीएससी आपको ना दे ये चीज। अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो क्या इंडिया ने कंप्लीटली बैन किया है? यस और नो? कोई ऐसा न्यूज नहीं आया। दिस हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड रहा है, क्योंकि हम इसको वेक्टर कंट्रोल में भी यूज करते हैं, चींटियों वगैरह के ऊपर डालने के काम आता है। तो इट कैन नॉट बी कंप्लीटली बैंड, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम कन्वेंशन बाय 2024 द यूज ऑफ डीडीटी शुड बी कंप्लीटली बैंड, पर इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, वी हैव पार्शियली बैंड इट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, बट वेक्टर के लिए, वेक्टर कंट्रोल के लिए हम इसको अभी भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, use of endosulfan is banned for agriculture purposes in India but allowed in restricted manner for vector control. See, endosulfan has been in lot in news, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, and Supreme Court in 2017 it actually ruled that endosulfan use has to be banned in India. Why? Because it was having a negative impact on the vulture population. So ये आपका हो जाएगा wrong यहाँ पे. So answer becomes option, which of the statement is are correct? So answer becomes option D, neither one nor two. Actually this second statement is given for this DDT, ये DDT के लिए second statement है और एंडोसल्फान के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो उनको इंटरचेंज उन्होंने कर दिया है क्वेश्चन में। तो दैट इज द आंसर ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग आर्टिफिशियल रीफ्स फॉर रिजुविनेटिंग कोस्टल फिशरीज, हाउ डज आर्टिफिशियल रीफ्स हेल्प फिशरी? तो पहली बात तो व्हाट आर आर्टिफिशियल रीफ्स? रीफ्स क्या होते हैं आर्टिफिशियल रीफ्स? आर्टिफिशियल रीफ्स का मतलब यह है कि आप आर्टिफिशियल स्पेसिस डेवलप कर रहे हो जहां पे फिशरीज या मेरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। सो गवर्नमेंट अंडर दिस इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस के अंदर वी आर डेवलपिंग दिस आर्टिफिशियल रीफ्स। इसके लिए 126 करोड़ रुपीस को अलोकेट किया गया है अमंग 10 स्टेट्स, यानी 10 स्टेट्स को टारगेट हम करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डेवलप आर्टिफिशियल रीफ्स हियर एंड इट कम्स अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना एंड दिस इज अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है? So you have to tell me this thing. Is this centrally sponsored और सेंट्रल सेक्टर स्कीम? कौन सी स्कीम ये होगी, ये आप मुझे बताओगे। नाउ नेक्स्ट इज इट इज यू। अब इसमें होगा क्या आर्टिफिशियल रीफ्स में? देखो जैसे ये आपका मान लो कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे दिस इज योर वाटर, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डेवलप सर्टेन स्ट्रक्चर्स विद कंक्रीट स्टील वगैरह के साथ हम कुछ स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा, इट विल प्रोवाइड अ स्पेस जहाँ पे कि मरीन इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। यानी एक हम सरफेस प्रोवाइड करेंगे वाटर के अंदर जहाँ पे कि जो प्लैंक्टॉन्स है वो वहाँ पे डेवलप होंगे। when the planktons are going to develop then the other marine ecosystem is also going to develop, their fishes वगैरह crabs वगैरह वहाँ पे फिर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सो द बेसिक आइडिया इज दिस कि मरीन इकोसिस्टम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहां पे मरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। अब एक तो सरफेस प्रोवाइड हो गया, दूसरी चीज क्या होगी कि जो भी वेव्स की स्पीड होती है, जो वाटर करंट्स की स्पीड होती है, उसको भी स्लो डाउन करेगा। जब चीजें स्लो डाउन होंगी तभी वो सेटल हो पाएंगी। तो ये दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है। तो एक तो सरफेस प्रोवाइड करेगा, दूसरा ये वाटर करंट्स को स्लो डाउन करेगा जिससे कि वो इस सरफेस पे स्टिक कर पाए, उस पर रुक पाए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, it is used for aggregating fish and providing home for the fish to grow. The statement is right. Second, it increases the speed of water currents to increase the catch rate. This statement is wrong. पहली बात, हम कैच स्टेट के ऊपर टारगेट नहीं कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली फोकसिंग अपॉन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द फिश इन दिस आर्टिफिशियल रीफ्स। सेकेंडली, अगर स्पीड ऑफ वाटर करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, द मरीन जैसे प्लैंक्टॉन्स वगैरह वहां पे सेटल नहीं होंगे, वहां पे प्लांट लाइफ नहीं आएगी। इफ द प्लांट लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी देयर, वहां पे फिश का आना कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज फिश नीड्स फूड। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे फिश का फूड ग्रो हो सके, जिससे कि फिश की पॉपुलेशन उस एरिया में बढ़ सके। So this second statement becomes wrong here. It provides a firm substrate for marine life such as algae and planktons to grow. तो उसका बेसिक ही है। So the answer here becomes option C, 1 and 3 only. I hope the things are clear to you. Now next is, अच्छा इसका आंसर इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पीएम मत्स्य संपदा योजना।
Next is use of solar radiation management for controlling global warming is being debated globally. In this context, consider the following. So, what is solar radiation management? कि जो सन की रेज आ रही हैं हम उसको कैसे मैनेज करें, वो ज्यादा आएंगी कम आएंगी, राइट? नाउ फर्स्ट इज एनहांसिंग नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस टू रिमूव द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. देखो CO2 किसके साथ इन्वॉल्व है? इट इज इन्वॉल्व विद ग्लोबल वार्मिंग. इट इज नॉट इन्वॉल्व विद द कमिंग और आउटगोइंग ऑफ द सन सोलर रेडिएशंस. सो ये जो प्रोसेस होगा ये आएगा आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में. So this comes under carbon sequestration. So the first statement becomes wrong here. Second, stratospheric aerosol injection. Yes, इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एरोसोल्स को डालते हैं and these aerosols are actually going to provide सरफेस जहां से कि सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और ये वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा जिससे कि सोलर रेडिएशंस वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी. तो इट कम्स अंडर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट. थर्ड इज एनहांसिंग द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मरीन क्लाउड्स. ऑब्वियसली मरीन क्लाउड्स के ऊपर वी आर गोइंग टू स्प्रेड द एरोसोल्स इन द ट्रोपोस्फियर जिससे कि मरीन क्लाउड्स इंक्रीज हो, जिससे कि जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं क्लाउड्स के ऊपर वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए. सो इट इज अगेन गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट. So the second and third are right. Answer here becomes option B, only 2. Next is, now this solar radiation को हम बोलते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग. ये एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है जितने भी एक्टिविटीज हम करते हैं किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू दी सोलर रेडिएशन की उसको रिफ्लेक्ट बैक करवाना है या उसको एनहांस करवाना है, वो किसमें आएगा आपका सोलर जियो इंजीनियरिंग के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज मिलेनो चैमिल्स द्रौपदी, a new species named after president of India. ये देखो आपको पता होना चाहिए बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर नाम रखा गया है. तो इट इज एक्चुअली हेड शील्ड सी स्लग. ये क्या है? हेड शील्ड सी स्लग. और ये स्लग जो है वो हमें मिला है ओडिशा वेस्ट बंगाल की कोस्ट के ऊपर. तो ये न्यू स्पीशीज का नाम हमने और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के नाम पे रखा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following birds is facing critical threat in India due to power lines becoming its unique flying style with a narrow frontal vision and heavy body that makes it difficult to maneuver? So directly I'm giving you the answer. It is Great Indian Bustard. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो उसका एक पिकुलर फ्लाइंग स्टाइल है कि बहुत ही नैरो विजन के साथ वो फ्लाई करता है. एंड व्हेन इट फ्लाइज इन विद अ नैरो विजन, तो जब नीचे देखता है तो ऊपर की तरफ नहीं देखता है, उसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, फ्लाई करता रहेगा. सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो हैवी पावर लाइंस है उसका वो टकरा जाता है और उसकी वहां पे डेथ हो जाती है. तो सुप्रीम कोर्ट इन 2021 सेट कि इन जितनी भी पावर लाइंस हैं जीआईबी इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके जो उसके एरिया के अंदर जितनी पावर लाइंस उनको सबको अंडरग्राउंड करो. तो गवर्नमेंट सेट दैट इट इज नॉट फाइनेंशियली फिजिबल टू अंडरग्राउंड ऑल द पावर लाइंस. It needs a huge amount of financial resources. So now the Supreme Court in 2024 has said that it is going to form a committee in which it is going to review that how much impact these power lines have on the GIB. Secondly, what solution can be provided for that. तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को एक तरह से रिव्यू किया है. अब वो कमेटी फॉर्म करेगा इसको पहले देखने के लिए कि उसका इम्पैक्ट कितना होता है. Now GIB is Great Indian Bustard. Basically आपको पता है, everyone knows about this thing कि it is critically endangered species है. और जो उसका एरिया वो कहाँ पे है? It is राजस्थान, then you have मध्य प्रदेश, then गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. That is the area, that is the pockets जहाँ पे Great Indian Bustard मिलता है, and it is the critically endangered species. It is also found in Pakistan जहाँ पे इसको हंट किया जाता है for meat. Now next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55. It says which of the following best describes the mechanism of biodiversity credits within biodiversity credit alliance. देखो ये जो biodiversity credit alliance है ये COP 15 of CBD में लॉन्च किया गया था. जो biodiversity credits वो होते क्या हैं? They represent an asset created through investment in the restoration, conservation and development of biodiversity in the specific landscape.
जैसे हमारे कार्बन क्रेडिट्स होते हैं कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिशन को रोकते हैं वो हमें कार्बन क्रेडिट्स मिल जाते हैं। उसी तरह से है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स, यानी हम जो एसेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, उसके लिए हमें मिल जाते हैं कुछ क्रेडिट्स जिन्हें हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स। सो द आंसर हेयर डायरेक्टली बिकम्स ऑप्शन बी, biodiversity credits are financial instruments that represent certified improvement in biodiversity। ये तो डायरेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि आप उनको नेगेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पहला है these are issued based on the number of endangered species protected। तो बहुत ही छोटा और बहुत ही नाइव ये डेफिनेशन इसका हो जाएगा। हो सकता है ये हो उसके अंदर, पर ये अगर हम बी के साथ कंपेयर करें तो बी इज मोर अ होलिस्टिक डेफिनेशन रेदर देन द A1, तो इसको आप नेगेट कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात कर रहा है। यहाँ पे ये हर चीज की बात कर रहा है, राइट। थर्ड, biodiversity credits are solely granted for reforestation project, again very narrow definition। biodiversity credits are issued in exchange for carbon credits in the international market, that is actually an absurd, मतलब कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसको आप वैसे ही नेगेट कर दोगे। so the answer here, the most fitting definition is option B। now next is this alliance, this biodiversity credit alliance, it was formed by UNDP, UNEP along UNEP Financial Initiative and Swedish International Development Cooperation Agency। तो इन तीनों ने मिलकर इस अलायंस को शुरू किया था एंड इट इज अ वॉलंटरी अलायंस। ये एक वॉलंटरी अलायंस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग, देयर आर वेरियस वेरिएंट्स ऑफ टाइगर गिवन एंड इट इज आस्किंग कि ये कहां मिलते हैं। तो लेट्स सी, देखो ये आपका है रॉयल बंगाल टाइगर। इन दिस रॉयल बंगाल टाइगर व्हेन दिस स्ट्रिप्स आर गेटिंग एक्स्ट्रा ब्लैक, तो यहाँ पे मेलेनिन ज्यादा है, यानी एक्स्ट्रा मेलेनिन जब होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक टाइगर। तो ब्लैक टाइगर इज फाउंड इन सिमली पाल टाइगर रिजर्व विच इज इन ओडिशा, विच इज इन ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर के अंदर क्या होगा कि ये गोल्डन कलर का हो जाएगा इसका जो मिलेनिन है, तो ये एक रिसेसिव जीन की वजह से होता है। ये किससे होता है? रिसेसिव ट्रेट है जो कलरिंग फर कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, रिसेसिव ट्रेट, उसकी वजह से इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। सो दिस इज फाउंड इन काजीरंगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। काजीरंगा इज इन योर नॉर्थ ईस्ट असम। थर्ड इज व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर क्या है? इसके अंदर देयर हैज बीन a genetic variation and the name of the genetic variation is leucism। this genetic variation, the name is leucism, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि the gene has actually got, जो मिलेनिन जीन है वो हट गई है, जिसकी वजह से ये व्हाइट हो जाता है। सो दिस व्हाइट टाइगर इज was basically found in रेवा। ये रेवा के अंदर मिलता था मध्य प्रदेश में। नाउ अब ये नेचुरली तो नहीं मिलता है, हाँ कुछ जूज वगैरह में या प्रोटेक्टेड साइट्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो इट वाज एक्चुअली फाउंड इन रेवा, मध्य प्रदेश। दिस हेमिस नेशनल पार्क इज इन लद्दाख। So that's why this third one becomes wrong. So answer here is option C, 1 and 2 only. Now next is question number 57, light pollution। light pollution क्या होगा कि जब भी आप एक्स्ट्रा लाइट ड्यूरेशन आप लाइट की बढ़ा दो, उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा दो, या लाइट का नेचर आप अलग कर दो, मान लो व्हाइट लाइट है वहां पे आप ग्रीन लाइट फेंकना शुरू कर दो या ब्लू लाइट डालना शुरू कर दो, दैट इज लाइट पोल्यूशन। यानी जो नेचुरल इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड जो नेचर है लाइट का, उसके अलावा किसी भी टाइप की लाइट डालना और उसका नेगेटिव इंपैक्ट होना एनवायरमेंट पे, दैट कम्स अंडर लाइट पोल्यूशन। So it says has diverse ecological impacts. Which of the following is a direct consequence of light pollution on marine life? So increased algae growth due to artificial lighting. We know that algae का growth basically nutrients के ऊपर based होता है कि जो वहाँ पे nutrition अगर बढ़ गया है उस water body का, then the algae growth will be there. So this first one becomes wrong, वो directly connected नहीं होगा। Second, disorientation of hatchlings of sea turtles। जो हैचलिंग सी टर्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल लाइट को यूज करते हैं फॉर देयर मूवमेंट। वो जब भी माइग्रेट करेंगे तो नेचुरल लाइट को यूज करके माइग्रेट करेंगे।
सो व्हेन देयर इज आर्टिफिशियल लाइट या लाइट पोल्यूशन जब होगा तो उनकी मूवमेंट को वो अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो डिसओरिएंटेड हो जाएंगे एंड दे इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इनटू द वाटर दे एक्चुअली कैन लैंड अप इन द बीचेस इटसेल्फ, तो दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर देम। तो ये इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। थर्ड, एनहांस्ड माइग्रेशन पैटर्न ऑफ सर्टेन फिश स्पीशीज। देखो कुछ फिश स्पीशीज जरूर यूज करती हैं लाइट को मूवमेंट के लिए, but it does not have that much enhanced impact. So this one becomes, although this is right, but this second option is more prominent than the third one. You can actually negate this option. लास्ट वन इज रिडक्शन इन ओशन सी एसिडिटी लेवल। सी एसिडिटी लेवल का डायरेक्ट रिलेशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, आपका एमिशन के साथ है, ना कि लाइट के साथ। सो दिस अगेन बिकम्स रॉन्ग। So the answer here is option B, disorientation of hatchling sea turtles. Now last question for the session. Which of the following statement best explains how excessive groundwater extraction can affect the earth axis of rotation? देखो it has been observed कि there has been a change in the earth's axis of rotation, और उसका बेसिक वन ऑफ द रीजन गिवन इज दैट ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन हुआ है, जिस उसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर है वो हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने यूज किया, दैट वाटर एक्चुअली फ्लोड इनटू द ओशंस। जब वो ओशंस में गया है तो द मोमेंट जो इनर्शिया है, जो मास इनर्शिया है अर्थ का, वो अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अफेक्ट हुई है। So the answer is redistribution of mass from groundwater extraction and its eventual addition to the oceans alters the Earth's moment of inertia, shifting the axis. So the answer here becomes option B. तो बेसिकली फिजिक्स को हल्का सा यहाँ पे यूज किया है समझने के लिए कि किस तरह से अर्थ की रोटेशन अफेक्ट हुई है ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर। So with this, we conclude the session for today. And if you have any doubt, please feel free to reach to us. Thank you very much.